All right, big news breaking right now. Our sources are telling us the rumblings that have been going on where the JDU is concerned and the curious case of Nitish Babu. Latest coming in, it does seem party president Lalan Singh will step down as JDU chief. We've learned from our sources Lalan Singh proposes Nitish Kumar's name as party president. Sources also tell us Nitish Kumar now will replace Lalan Singh in the big meeting tomorrow. Nitish Kumar will be now the next JDU chief as well as the Bihar chief minister. Now, the crucial JDU meet will take place tomorrow and we will end up knowing more. But the latest that is coming in is what was being speculated over days now, that Lalan Singh will step down. He's already proposed Nitish Kumar's name to be party president, and Nitish Kumar will now take the reins of the political outfit. Listen in to all reactions. ये तय हुआ कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 11:30 बजे वीपी हाउस में होगी और 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और जो अफवाहें चर्चाएं थी वो सब सिरे से खारिज। कोई एजेंडा तय करके कोई बात नहीं। ललन सिंह जी अध्यक्ष हैं। ये तय हुआ कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 11:30 बजे वीपी हाउस में होगी और 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और जो अफवाहें चर्चाएं थी वो सब सिरे से खारिज। कोई एजेंडा तय करके कोई बात नहीं। ललन सिंह जी अध्यक्ष हैं। All right, interesting. KC Tyagi, who is speaking to the press, saying all conspiracy theories will be laid to rest tomorrow, where the big meet will take place, where the JDU will be meeting everyone in the national capital for the crucial JDU meet tomorrow. Speculations are that Lalan Singh will step down and propose Nitish Kumar's name as the chief of JDU. But KC Tyagi says all of these speculations will be laid to rest. However, let's cut in to the next bit of news break that we are getting in, which seems to, of course, go in with at least what our sources are indicating that all is not very well where the JDU is concerned. Rumblings have been going on for a while. Inside details of the JDU meet in Delhi. Sources have told us Nitish JDU Netas meet lasted about 15 minutes. Nitish led the meeting. He was tense. Nitish asked workers to prepare for 2024. What does this mean when it comes down to the fate of Lalan Singh as party president? Will he step down? There is an indication that he might propose Nitish Kumar's name as well. Let's cut across to our reporters who are breaking this news on India Today. Himanshu Mishra joins us on the inside details. He's learned from his sources, Maushmi Singh, on the larger picture on what we can expect tomorrow. Himanshu, KC Tyagi ने अभी बोला जो सारी अफवाहें चल रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं, कल सब खारिज हो जाएंगी। कल मीटिंग है, उसमें देख लीजिएगा। पर आपके सोर्स कुछ और ही बता रहे हैं आपको। देखिए, मुझे लगता है कि केसी त्यागी ये कैसे कह दें कि जो चीजें अभी हुई नहीं है पार्टी में और उसको कैसे एक्सेप्ट कर लें। केसी त्यागी भी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कहीं आग लगने की बात है तो कहीं ना कहीं धुआं जरूर उठा है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ललन सिंह खुद जो है वो नीतीश कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे थे जो दिल्ली में स्थित है, सरकारी आवास है। उसके बाद वो जेडीयू कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार के साथ ही। लेकिन जब नीतीश कुमार निकले वहां से जेडीयू कार्यालय से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद तो संजय झा उनके साथ थे, ललन सिंह उनके साथ नहीं थे। और प्रीति जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले ये तय हो जाएगा कि ललन सिंह की जगह नया अध्यक्ष जो है पार्टी का वो नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में जो है 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अब सवाल ये है कि ललन सिंह को लेकर क्यों इस तरीके से है कि उनको इस वक्त अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। उसका कारण ये है, जो जेडीयू के सूत्र बताते भी हैं कि ललन सिंह की जो नजदीकियां है वो लालू परिवार के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है और ये बात नीतीश कुमार को किसी भी सूरत में नागवार गुजरती है कि उनकी पार्टी का कोई नेता दूसरी पार्टी के किसी नेता के साथ इतने अच्छे उनके रिलेशंस हो और
इस तरीके से उनको हमेशा ये रहता है कि अगर कोई भी बात है पार्टी में, किसी दूसरी पार्टी के साथ बातचीत करनी है, तो उसका अंतिम फैसला और उसकी शुरुआत दोनों ही नीतीश कुमार के जरिए हो। और नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं और समय समय पर उन्होंने इस तरीके के कड़े फैसले लिए हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, जिनके साथ मिलकर उन्होंने समता पार्टी बनाई थी, उनको अध्यक्ष पद से इसी तरीके से हटाया गया था। उसके बाद शरद यादव को इसी तरीके से हटाया गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे, नीतीश कुमार ने खुद कमान संभाली और नीतीश कुमार के कमान के बाद उन्होंने जो है पार्टी की कमान आरसीपी सिंह को दी। आरसीपी सिंह को किस तरीके से हटाया गया ये हम सब ने देखा है। और अब ललन सिंह को कमान सौंपी थी और ललन सिंह को भी इसी तरीके से जो है उनका विदाई समारोह होगा। तो विदाई समारोह बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसमें ललन सिंह की अध्यक्षता जाने के पूरे चांसेस हैं। प्रीति, पूरे चांसेस हैं। हिमांशु हमारे साथ बने रहिए। आई ऑल्सो वांट टू ब्रिंग इन मौसमी सिंह फॉर अ लार्जर पिक्चर ऑन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। यू नो मौसमी, हिमांशु source is telling us in all probability. All right, we don't have Maushmi with us. We're going to try and connect to Maushmi, but I want to go back to Himanshu, who's, speaking to his sources. His sources have told him, in all probability, tomorrow Lalan Singh will step down and he himself will propose the name of Nitish Kumar as party president. The reason behind all of it being that Nitish Kumar suspicious, the party is suspicious that the allegiance of Lalan Singh lies not with the JDU and Nitish Kumar, but with RJD. Which is Lalu Prasad Yadav. I have with me Himanshu back again with us. Himanshu, इस बीच एक क्राइसिस भी उमड़ के आता है जो जेडीयू पार्टी है, कोई सक्सेशन प्लान नहीं है, नीतीश कुमार के बाद कौन। और इस वक्त जब नीतीश कुमार पहले ही चाह रहे थे कि वो इंडिया अलायंस की कमान संभाले, वो तो कहीं उसके आसपास नजर नहीं आ रहे हैं अभी। देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के अंदर जो उनको चाहिए था वो अभी तक मिला नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में ये भी खबरें आती हैं, जब भी इंडिया अलायंस की बैठकें होती हैं तो नीतीश कुमार जो है नाराज ही बताए जाते हैं। चाहे हिंदी भाषा को लेकर पिछली बैठक में उन्होंने ये कहा हो कि जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो डीएमके के नेता टीआर बालू ने मनोज झा, जो आरजेडी के नेता, उनसे कहा कि ट्रांसलेट कर दीजिए ये हिंदी में। तो नीतीश कुमार उसमें नाराज भी। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है और हिंदी भाषा सबको समझनी भी चाहिए, यहाँ तक वो कह गए। तो इस तरीके की समय समय पे खबरें भी आई, क्योंकि ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को जो है इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाया जाएगा, लेकिन उसको लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन हमारे सूत्र ये भी बताते हैं प्रीति कि अगले एक हफ्ते के अंदर शायद नीतीश कुमार को जो है वो इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बना दिया जाए, क्योंकि जेडीयू इस बात को लेकर लगातार क्लेम करता है कि इंडिया गठबंधन बनाने की जो शुरुआत है वो नीतीश कुमार ने ही की थी। और इसीलिए उनका क्लेम भी बनता है कि इंडिया अलायंस के गठबंधन का जो कन्वीनर हो वो नीतीश कुमार हो, और नीतीश कुमार ही सभी पार्टियों को साथ लेकर चलने की कवायद की बात भी कहते हैं। वो कहते हैं कि गठबंधन को मजबूत किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब ललन सिंह को हटाने की बात आती है और आरजेडी के साथ उनकी नजदीकियों को लेकर उनको हटाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सुगगाहट भी सामने आती है कि ललन सिंह को अगर हटाया जा रहा है तो क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है उसने ये पहले ही तय कर दिया है कि नीतीश कुमार के साथ अब गठबंधन की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, जो नेता कहते हैं वो होता नहीं है और जो नहीं कहते हैं वही होता है। तो ये संभावनाओं से नहीं नकारा जा सकता है कि आरजेडी जेडीयू का गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हो सकता। अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी की एक शर्त जरूर होगी, जो हमारी कुछ लोगों से बात होती है कि अगर नीतीश कुमार आते भी हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं नवाजा जाएगा, क्योंकि उनको 4 बार जो है मुख्यमंत्री बनाया गया और 2020 में उनकी सीटें कम आने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। 2005 के अंदर भी जेडीयू की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी से कम थी, तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार ये मौका नहीं गंवाना चाहेगी। वो ये जरूर चाहेगी कि अगर जेडीयू के साथ गठबंधन हो, अलायंस हो, तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता जो है बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बने, ना कि जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार बने। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का कोई गठबंधन होगा। अगर होगा तो सूरत यही होगी कि जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ही कोई मुख्यमंत्री होगा।
चलिए हिमांशु, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े. All eyes right now on that big meeting tomorrow. Till now, the leaders where the JDU is concerned are coming out and saying all speculations, tomorrow in terms of the conspiracy theories emerging that Lalan Singh will step down, give the reign of the party to Nitish Kumar, because Nitish Kumar not happy where what he suspects lie the allegiance of Lalan Singh, which is with the RJD and not Nitish Kumar. Having said that, our sources tell us otherwise, but tomorrow we'll know for sure. That big meeting at 2 p.m. tomorrow afternoon. The suspense continues on the JDU leadership right ahead of 2024. Sources, like you just heard, have told India Today that JDU President Lalan Singh likely to resign and nominate Nitish Kumar's name in it. Now, this big buzz comes right ahead of the JDU National Executive Meet in the national capital, scheduled tomorrow. The meeting will be convened by the current party president, Lalan Singh, where he's suspected to take over and announce and nominate Nitish Kumar as the party president. Meanwhile, in all of this, Nitish Kumar has refused to comment on the rejig in the JDU. He said that the Friday meeting is part of the party's annual tradition. Remember, the meeting comes days after the crucial India Alliance meet in Delhi. जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहे. आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए, जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहे. आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए. All right, so that's one political story from Bihar playing out in the national capital. That big meeting of the JDU tomorrow, we'll know a lot more on what's going on with the JDU and Nitish Kumar.